you are following your ethics, you know you are a good surgeon, you know you are giving right advice to the patient, and you know that your work is being appreciated, and you're ready to take some risk, financial risk, that you want to, if you want to grow, and above all if you have ambition. 550 माइक्रोन का टिश्यू होता है जिसमें से कि पतला सा एक लेंस प्लस नंबर का लेंस बना दिया जाता है और 2-2.5 मिलीमीटर होल से निकाल दिया जाता है। तो ये 3 तरह के लेजर प्रोसीजर, अब उसके साथ नाम जोड़ दिए जाते हैं कि लोग अपने आप को पहले सेल्फ एजुकेट बहुत कर लेते हैं, एंड दे आर, आई कॉल इट ओवर इन्फॉर्मेशन सिंड्रोम। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, वो इन्फॉर्मेशन को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एसिमुलेट नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी गलत हो जाती है। तो पहले यहीं पे आके बात होती है, यस इट इज गुड टू गो टू सोशल मीडिया और गूगल और इंक्वायर अबाउट इट, बट मेरा मानना है कि इतनी इन्फॉर्मेशन उस पर होती है और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको गैदर करने के बाद उस पर डिसीजन ना लें। So sir, now how this technique differs from the other one? It is not advisable to rotate the nucleus, and it is not advisable to do hydrodissection or delineation. So here becomes a challenge because when you go through single port, it is easy to remove the opposite end of the half of the cataract. Right. But there is a other half of the cataract which is lying under the instrument. So when instrument is like this, it can go and eat it. But how to remove this? We have to rotate and bring it down in front of the tip. Right. But you cannot rotate it because it is posterior polar cataract. As such a beautiful technique that I am presenting in national and international platforms, and everybody is really appreciating this technique because it really brings down the chances of complication to very low level. This episode of DocPod is divided into 3 sections. The first section will be life journey of Dr. Rakesh Gupta. The second section of the podcast will be related to the major concerns regarding refractive surgery, and the third section of the podcast will be related to a novel dual technique of Dr. Rakesh Gupta in which he can do a surgery with both the hands. So let's welcome him. Welcome Dr. Rakesh Gupta on this show. First of all, thank you so much for accepting my invitation. Sir, I would like, this is my first question to every doctor who comes on this show. So you wanted to become an ophthalmologist. You chose this career when you were 22 or 23 years old. Sir, why did you choose ophthalmology as a field in the first place? So Satyam, to be honest, I would say I never had a dream to become ophthalmologist. In early 90s, when I was a school student, I mean there was no idea, we were not so focused, and I came from a very humble background. So पढ़ने का शौक था, I always wanted to study. So if I share my honest my story, I wanted to be engineer at some point of time, but in my school time, biology and math both were compulsory, and in my school, everybody wanted to become doctor, and in over 2 years I changed my mind to become a doctor. I actually got admitted in both engineering and medicine. Okay. But then everybody said ki why are you leaving medical field, because people have been dying to become doctor. So I thought, okay, let me, because I was not very focused ki engineering banna hai. And then I took medicine, and after my MBBS, yes, I realized that surgery is my cup of tea. I would like to do anything which involves surgery. And that is the point of time when I realized that if I want to do surgery, either I'll go for neurosurgery or orthopedic, and ophthalmology was one of the choice. But when I faced my counseling, that was the point when I decided to be ophthalmologist. So I would say I never wanted to be ophthalmologist before I entered ophthalmology, but once I entered ophthalmology, तो मुझे लगा ये मेरा passion है. And actually during MBBS also I was average student, but I was not so passionate about anything which I was doing. I was still inventing myself. But when I got ophthalmology, I realized that this is my passion, this is my cup of tea, and I never looked back. And I started doing very hard work, and yes, it's a journey over the last 24 years. So sir, you are in ophthalmology since 24 years. So sir, ophthalmology के साथ साथ sir, everybody has some hobbies or interests,
And sir, what I know is कि you like to play golf. सर golf के अलावा सर आपके और क्या क्या interest हैं? So see, golf is my, I would say, I started playing very late, few years back only. But during childhood, was very fond of drawing, sketching, painting. But my family, that right time, it was not very, parents never encouraged. They never encouraged, this kind of hobbies, and it was very important to study and to become some kind of a professional. But this hobby of drawing, sketching, I reinvented this hobby during my lockdown, and now I'm regularly following those hobbies. But after a gap of 30 years, I would say. And yes, I enjoy music also. I enjoy singing karaoke also, and even I would say art of any kind of art. I love to do, and I believe even surgery is an art, so that has really helped me. My hobby of being an artist has really helped me in becoming a surgeon, whatever I am today. Right, sir. Sir, lockdown ने सर वैसे भी बहुत hobbies दी है, सबको ही दी हैं. Exactly. And sir, now let's come to a question, sir, which is a pressing concern. अब sir जैसे technology, it's growing at a very rapid race. Like after AI came into existence, sir, उसका एक impact sir healthcare पे भी पड़ा, then ophthalmology में भी पड़ा. Sir, now एज अ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, सर एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को भी टेक्नोलॉजी के साथ पेस के साथ एक बना के रखना पड़ेगा. सो सर व्हाट मेजर्स कैन एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मेक टू कीप अप विद द पेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? So I think this is a very valid question, a very pressing question, and I would say, Satyam, that there are many doctors who feel threatened when we talk of technology. There is I would say, a group of doctors who feel that technology is going to replace, and in fact, in every profession, in fact, there have been talks that AI is going to replace human at most of the places. But I believe in medicine, and especially in surgical fields, it is very important, and technology is actually important for us, and I believe technology is there to help us. So I never feel threatened by technology. Like I'm a single practitioner, a first generation doctor, but if you see in my hospital, I've got every single technology related to ophthalmic surgeries. People sometimes ask, how can you have, why have you invested so much being a single doctor? I always feel that technology is there to help us, and when we adopt technology, that technology will not only help us, it will help our patients, and it's open world. So if we have a technology, and if we are giving good, doing good job, so this technology is going to increase our efficiency, increase our precision of surgery. It will give more satisfaction to the patients. It saves time for us, and it also help us. It also helps us to earn money also. Yes, whatever we earn, a portion of it goes to technology, to companies, to engineers, and to but yeah, I think if you see cataract surgery, for example, that is most common surgery. There was a time when cataract surgery used to be done for 2.5-3,000 because surgeon was doing it alone. But today cataract surgery rate has gone up to 1.5, even 2 lakh. So I think technology is not a threat to any doctor. It is a way we look at it. In fact, I feel when if we have good technology in our hand, it actually gives us an opportunity to improve our skills also. Like as you know, I've turned into ambidextrous surgeon. If I had no good technology in my hand, it was very difficult. So technology is there to help us, not only by giving good results, it gives us an opportunity to improve our skills also, and to innovate and come out with newer surgical techniques as well. So sir, in conclusion, we can say that technology is a tool which can help us in a way. It is not going to replace us. So I believe technology is never going to replace a human being in medical science. It is only going to help us. But yeah, it is going to bring competition to us. But if we adapt accordingly, for example, if there is a technology to diagnose a disease better, so we don't need to spend our energy and mind in diagnosing a disease. Right. But if we add some, if I focus our mind on bringing out new treatments, new surgical techniques, so I think we will always remain relevant, because even if you see in the world of robotic surgery, there is always a surgeon sitting behind robot. In fact, I would say
लोग सोचते हैं कि रोबोटिक में सिर्फ रोबोट सर्जरी कर रहा है, तो दोस्तों रोबोट सर्जरी नहीं करता. देयर इज ऑलवेज अ सर्जन सिटिंग समवेयर, चाहे वो सर्जन 1000 किलोमीटर दूर बैठा हो. बट अल्टीमेटली जो व्यू देखता है, जो हमें रिफ्लेक्सेस है, वो सारे सर्जन के होते हैं. ओनली थिंग इज उन रिफ्लेक्सेस को रिफाइन करके वो सर्जरी करते हैं. सर्जरी सो ये एक गलत सोच है कि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर देगी. बट वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड. अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, देन वी विल बिकम आउटडेटेड. बट सर अब जैसे इफ़ वी वांट टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन द हॉस्पिटल, सर उसके लिए सर अब रिसोर्सेज भी चाहिए. सर हाउ कैन अ सिंगल प्रैक्टिशनर or a single the doctor who is running single hospital can manage his resources as well? Yeah, that is a big question. I think the answer to this question lies in the fact that when anybody becomes a doctor, so they have to look at their resources, and everybody cannot have financial resources. But I believe if you have confidence in yourself and you can take loan, even with loan you can invest up to a limit. You should take some risk, because if you want to come into your own practice, it is very important to have that entrepreneurship mind. And if you don't have, doesn't matter, there are hospitals which can employ you. So I would say future there will be two kind of doctors. One doctor who is ready to work in a hospital, and other doctors who will like to open more hospitals, who have entrepreneurship in their mind, who would like to take risks, financial risks, to take loan, to invest, and to come out. But I think in every business this kind of risk is there. Risk is there, right? So there is no gain without pain. Right, sir. So sir अब जैसे as you mentioned कि you are a single practitioner, sir, as there is a corporate culture rise in ophthalmology, sir, in some way it is good also if we look it from the capitalist approach, but if we look it from the socialist approach, it is a bad thing, sir. But the question which came in my mind is कि how can a single practitioner differentiate itself from the corporate hospitals? Yeah, it's again a very good question, Satyam. Thanks for bringing this up, because this is very close to my heart also. Many people ask, young generation of doctors, they come, they say, how can we start practice in this corporate world? So I'll tell you one thing. In medical science, or for that matter in any profession, when a patient is in pain, it is not only the diagnosis and medicine which is treating the patient. The faith of patient in the doctor treating that patient is very important. I always say faith is the first medicine. So if anybody is a good doctor and they understand the realities of modern times or practicing in modern times, I believe it is not difficult to start practice and at any moment. Yes, competition is there, we have to accept it. But in a country of 150 crore, if you calculate, still the doctor to patient ratio is very low. Right. So you can decide in which area to practice. You can, even if you want to stand in between the corporate giants, it is possible. I am one of those examples. I'm surrounded by all those corporates. Right. But I believe if you are doing a good job, you are following your ethics, you are a good surgeon, you are giving right advice to the patient, and that your work is being appreciated, and you're ready to take some risk, financial risk, that you want to, if you want to grow, and above all, if you have ambition. It is never possible to establish your practice. I still feel there are many young generation of doctors, first generation doctors who are coming up and they are doing well. But yeah, we have to keep our expectation at realistic level. We should compete with our corporates in different way. Corporates can offer you 5-star services, good personalities and all those, but treatment ultimately is to be given by the doctor, his team, the healthcare team. So if you're a good doctor, your team is good, and you're committed to give to best treatment at a reasonable cost, there is still need of so many doctors in everywhere in this world. Yes, it sometimes looks very scary or threatening that corporates will not allow us. It is wrong. If somebody अगर पहले डर ही गए तो फिर तो कुछ नहीं होता, लेकिन if you think beyond, if you have a vision, it is always possible. Right. So sir, now let's move on to the second part of the podcast, which will be related to the patients. As you are a cataract and refractive surgeon, I want to dive into the aspects of refractive surgery. सर अब जैसे चश्मा हटाना है किसी को, तो सर there are many procedures like PRK, then comes LASIK, then comes SMILE, then comes clear.
Sir, there are so many procedures. Sir, how do you describe each procedure? Like, there must be a difference between each and every one. तो सत्यम, क्योंकि चश्मा हटाने की बात आ रही है तो मैं पब्लिक को हिंदी में भी बताना चाहूँगा कि देखिए 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं मेन, PRK, लेसिक और लेंटिक्यूल। PRK में क्या होता है, इसका बोलते हैं फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। इसमें लेज़र से ना कॉर्निया को ऊपर से पतला कर दिया जाता है, ना ब्लेड यूज़ होता है और ना इसमें कोई इन्वेजन होता है। लेकिन क्योंकि PRK में एक जख्म बनता है करीब 8 या 9 मिलीमीटर डायमीटर का, तो उसमें पेन होता है। Okay. और पेन होता है 3-4 दिन और लोगों के पास समय नहीं होता। तो आज भी PRK एक सेफ ऑपरेशन है और अच्छा ऑपरेशन है, लेकिन उसमें क्योंकि पेन होता है, रिहेबिलिटेशन टाइम ज़्यादा होता है, तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते। और हम भी कहते क्यों करना, क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत शॉर्ट रहता है आजकल। Right. हाँ. दूसरा फिर प्रोसीजर आता है लेसिक। अब जो लेसिक प्रोसीजर है उसमें PRK वाला ही लेजर इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉर्निया की एक लेयर उठाने के बाद। Okay. तो उसके लिए एक लेयर उठाते हैं, नीचे लेजर की और लेयर वापस बैठा दी, तो उसमें क्या होता है, जख्म ही नहीं बनता, 8-10 घंटे थोड़ी इरिटेशन रहती है और पेशेंट अगले दिन से नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक तरह से क्विक फास्ट पेनलेस प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसमें फ्लैप बनता है तो उसके साथ कुछ इश्यूज आते हैं। तो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जैसे आपने बोला स्माइल, क्लियर है और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो ये लेंटिक्यूल टेक्नोलॉजी है बेसिकली। लेंटिक्यूल में क्या होता है, एक पतला सा लेंस कॉर्निया के अंदर डिजाइन किया जाता है और उसको निकाल देते हैं। Okay. तो देखो, तो इंसिजन बनाते हैं and हाँ, they- तो लेजर से ना एक 2 प्लेन कट होते हैं अंदर कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया एक 500-550 माइक्रोन का टिश्यू होता है, जिसमें से कि पतला सा एक लेंस प्लस नंबर का लेंस बना दिया जाता है और 2-2.5 मिलीमीटर होल से निकाल दिया जाता है। तो ये 3 तरह के लेजर प्रोसीजर। अब उसके साथ नाम जोड़ दिए जाते हैं, क्लियर है, स्माइल है, स्मार्ट साइट है, बहुत सारे नाम है। ऐसे ही जब लेसिक की बात आती है तो लेसिक में बहुत सारे नाम जुड़ जाते हैं। एक्चुअली लेसिक होता है या तो स्टैंडर्ड होता है या कस्टमाइज्ड। अब कस्टमाइज्ड लेसिक अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड से है। Okay. जैसे आपने सुना है कंटूरा है, आई डिज़ाइन है, HD है, ज़ायोप्टिक्स है, इनोवाइज है, ये सारे नाम है बेसिकली कस्टमाइज लेसिक के। अब कस्टमाइज लेसिक करने के 2 तरह के होते हैं, एक होता है टोपो गाइडेड की कॉर्निया के सरफेस मेजरमेंट करके, एक होता है वेव फ्रंट गाइडेड या रे ट्रेसिंग जिसे बोलते हैं कि अंदर के हम वेव एक तरह से इंटरनल एब्रेशंस निकाल देते हैं। और इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। अभी अलग अलग कंपनी के हैं, एक कंपनी की आई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, जॉनसन्स की, एक एल्कॉन की कंटूरा या इनोवाइज है, ज़ायोप्टिक्स है, बॉशनॉम की, अलग अलग कंपनी के नाम हैं। बट वो अलग बात है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर कोई एक नाम को ज़्यादा बोलता है, मार्केटिंग गिमिक क्रिएट हो जाता है, तो लोग यंग जनरेशन को इफेक्ट करता है लेज़र, तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, PRK, लेसिक और लेंटिक्यूल, ये 3 टेक्निक है। मशीन सारी अच्छी हैं, आपको लिए क्या ठीक रहेगा ये आपकी उस काउंसलिंग के बाद डिसाइड होता है। अगर आपके डॉक्टर आपके लिए समझते हैं PRK अच्छा है, तो वो भी बुरा प्रोसीजर नहीं है। कुछ लोगों के लिए आज भी PRK किया जाता है, जैसे आर्मी है, पुलिस वाले हैं, जिनको कि चाहिए कि लेज़र का ज़्यादा पता ना लगे या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब जो लेंटिक्यूल टेक्नोलॉजी, उसमें भी एडवांटेज आ गया है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए वो सेफ है, क्योंकि उसमें फ्लैप नहीं बनता है। लेज़िक के अपने एडवांटेजेस होते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल होता है, लेकिन उसमें फ्लैप बनता है। और फ्लैप बनने के बाद जो उसमें इशू आता है, वो थोड़े से रिंकल्स आने के चांस, ड्राइनेस आने के चांस उसमें बन जाते हैं। Okay. So sir, अब जैसे if somebody goes for a refractive procedure, सर बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। सर व्हाट आर दोज? तो देखिए, चश्मा हटाने की अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपका मन होना चाहिए चश्मा हटाने का, खुद का। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट को खुद मोटिवेट होना चाहिए। अगर आपको चश्मा हटाने की इच्छा है और 18 साल से ऊपर उम्र है, तो आपको अपने डिसीजन लेके अपने पसंद का सर्जन और हॉस्पिटल चूज़ करना है। वहाँ जाएंगे, कुछ टेस्ट होंगे। वो टेस्ट के समय मैं एक बात दोस्तों बताऊंगा कि अपनी मेडिकल कंडीशन सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए डॉक्टर को। लोग सोचते हैं कि लेज़र करा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे डायबिटीज़ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे PCOD है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे थायराइड है तो। शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिसीजन आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। आपको अपने डॉक्टर को बताना है तो सारी जनरल कंडीशन बताइए। आँखों की डिटेल चेकअप किया जाता है, आँखों में कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। कुछ बीमारियाँ आँखों की ऐसी होती है जिसके बाद लेज़र करना सेफ़ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बीमारियाँ ऐसी होती हैं अगर कुछ है भी साथ में तो लेज़र किया जा सकता है, बशर्ते हम उसके साथ जुड़ी बातों को समझने के लिए तैयार हैं। 2-2.5 घंटे के टेस्ट होते हैं दोस्तों। सारे टेस्ट होने के बाद आप लेज़र के लिए, यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपकी आँखें पे लेज़र किया जा सकता है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है काउंसलिंग की बात कि कौन सा प्रोसीजर किया जाए। वो काउंसलिंग जो होती है उसमें आपका जो आपको 3 चीज़ डिसाइड करनी है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका कितना खर्च कर सकते हैं आप, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है।
डॉक्टर को ये देखना है कि आपका नंबर कितना है, आपकी कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, आपका कॉर्निया की शेप कैसी है। तो डॉक्टर के अपने एस्पेक्ट्स होंगे, आपके अपने एस्पेक्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ डिसाइड करने के बाद कंबाइंड डिसीजन लिया जाएगा कि आपके लिए क्या सेफ है और बेस्ट है एक्चुअली। उसके बाद बात आती है कि लेज़र हो गया, उसके बाद क्या किया जाए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोसीजर किया गया है। यदि PRK किया गया है तो थोड़ा सा आपको सावधानी, क्योंकि पेन रहेगा 3-4 दिन, कॉन्टैक्ट लेंस रहता है, तो ज़्यादा सावधानी रखनी है कि धूल मिट्टी पानी से ज़्यादा बचना है। एक बार 4-5 दिन निकल जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस निकल जाता है, उसके बाद आप नॉर्मल रहते हैं। विज़न जो इंप्रूवमेंट है उसमें थोड़ा ग्रेजुअल होता है, तो हो सकता है 2 से 6 हफ्ते आपको विज़न इंप्रूवमेंट होने में लगे, लेकिन आप काम पे वापस हफ्ते 10 दिन में जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 हफ्ते में आप अपने काम पे वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम लेसिक की बात करते हैं तो लेसिक में जल्दी रिहेबिलिटेशन होता है, अगले दिन आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और 5-6 दिनों में आप अपने काम को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने लेंटिक्यूल प्रोसीजर कराया, जैसे क्लियर है या स्माइल है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक तरह से, आपको प्रिकॉशंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि कट सिर्फ 2.5 मिलीमीटर का होता है। आप 4-5 दिनों में अपने काम पे वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ समय के लिए आपको समझना है कि लेज़र कोई भी तरह का हो, कुछ समय के लिए आपको कुछ इश्यूज महसूस हो सकते हैं, जैसे ड्राइनेस है, हेलोज, स्टारबस, ये शुरू में हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कौन सी टेक्नोलॉजी डिपेंड की है उस पर डिपेंड करता है, और आपकी कॉर्निया की कंडीशन पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आपके ये इश्यूज सेटल हो जाते हैं। 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में आपके वो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं कर सकते, आप सब कुछ शुरू कर सकते हैं 1 हफ्ते बाद। आप ड्राइविंग है, कंप्यूटर यूज़ करना है, TV यूज़ करना है, किचन वर्क, सब कुछ शुरू कर सकते हैं। ओके, सो सर, अब जैसे विद लेज़र देयर इज़ अ मेजर कंसर्न कि लेसिक करवाने के बाद देयर इज़ अ ड्राई आई इन पेशेंट्स। यस, सो सर, हाउ डू यू मैनेज दैट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ड्राइनेस जो होती है दोस्तों, लेजिक के बाद आती है, नो डाउट। अगर PRK करते हैं उसमें ड्राइनेस कम आती है, लेजिक में ड्राइनेस ज़्यादा आती है, लेकिन अब लेंटिक्यूल आ गई उसमें भी ड्राइनेस मिनिमम हो जाती है। जो लेजिक के बाद ड्राइनेस आती है उसको मैनेज करने के लिए मैं कहूँगा वो तो मैनेजमेंट पहले ही शुरू हो जाता है, लेज़र करने से पहले ही। जब पेशेंट का वर्कअप होता है तो ड्राइनेस का इवैल्यूएशन किया जाता है, आपका शर्मास टेस्ट किया, कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि आंसू कितने बन रहे हैं और ड्राइनेस है कि नहीं है। अगर ड्राइनेस पहले से आंखों में है तो लेजिक आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है, लेकिन उसमें आप PRK पहले अब क्या करते थे, लेकिन अब लेंटिक्यूल प्रोसीजर जो है उसमें वो सेफ माना जाता है, जैसे क्लियर है। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें देखना होता है कि जो ड्राइनेस कंट्रोल में रहे। अब लेज़र के बाद जो ड्राइनेस आती है, तो पहली बात तो आजकल की नई टेक्नोलॉजी में ड्राइनेस के चांस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से स्क्रीन करते हैं। लेकिन फिर भी यदि ड्राइनेस आती है तो उसके लिए हमें ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देने होते हैं, और सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा इसी दौरान कि ज़्यादातर लोग, 95% लोग हम देखते हैं कंप्यूटर पे किसी ना किसी तरह से 8 घंटे से ज़्यादा बिता रहे हैं। जिनका कंप्यूटर पे ज़्यादा काम है, उनको यदि ड्राइनेस नहीं भी है तो मेरी सलाह रहेगी उनको लेंटिक्यूल प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्राइनेस जो है वो नेग्लिजिबल इंड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू लेजिक। या फिर अगर किसी कारण से उनका कॉर्निया पतला है, PRK करने के बाद भी वो ड्राइनेस फ्रेंडली प्रोसीजर माना जाता है। लेकिन ड्राइनेस फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होगी। एक एस्पेक्ट ये समझना कि जब चश्मा हटता है तो लेज़र करके चश्मा हट गया, लेकिन जब चश्मा हट गया दोस्तों तो आंखों पे हवा लगती है। आप AC रूम में बैठे हैं, AC हवा आंखों पे लगाता है, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो भी ड्राइनेस बढ़ाती हैं। तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस रहती है तो आप 0 पावर का एंटी ग्लेयर चश्मा या ब्लू फिल्टर का चश्मा पहनना शुरू कर दीजिए, उससे भी ड्राइनेस कंट्रोल होती है। और ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप हम कहते हैं दिन में 2 से 4 बार सबको डालनी चाहिए। अब सर, ऑन पॉडकास्ट ना मैंने आई रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जिसमें एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हेन टू गो फॉर अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, बट पर्सनली आई also want to know कि when to go for a refractive surgery and when not to go for a refractive surgery. So yes, देखो सकते हम, अगर चश्मे की हटाने की इच्छा है तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज़ अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसीजर। मेरा मानना है कि अगर आपके चश्मा हटाने की इच्छा है और बेसलाइन वर्कअप नॉर्मल है और आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, आप समझते हैं कि लेज़र करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, और आप ये भी समझते हैं कि माइनर इश्यूज़ है, ड्राइनेस है, ग्लेयर, हेलोज थोड़े बहुत होते हैं, वो नॉर्मल अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो लेज़र कराना बहुत सेफ है। कुछ कंडीशन में मैं कहता हूँ कि लेज़र नहीं कराना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात आती है, पहली बात तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बाय नेचर टाइप A पर्सनैलिटी होते हैं, जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, और उन लोगों को लेज़र कराने से पहले काफ़ी काउंसल करना पड़ता है। अगर काउंसलिंग के बाद वो समझते हैं तो लेज़र कराना उनके लिए भी सेफ़ है। दूसरी बात आती है कि लेज़र के लिए अगर उनकी आँखें फिट ही नहीं है, ये देखा जाता है कभी कभी कि एक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई फिट नहीं है, आप सेकंड ओपिनियन लिया, लेकिन वो अपनी जिद में आके ना कभी कभी बहुत आगे, मतलब कहीं ना कहीं जाके कर बैठते। तो ऐसे भी लोग होते हैं कई बार,
वो जब पेशेंट बहुत प्रेशर में डालते हैं, वो लेज़र कर बैठते हैं, उनको बाद में प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। ओके। कुछ सिचुएशन होती है जहाँ लेज़र नहीं कराना चाहिए, कि खासकर उन लोगों को जो खुद लेज़र कराना नहीं चाह रहे हैं किसी कारण से, लेकिन वो किसी के दबाव में कर रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे उनको फिर वो लोग खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जब अपने अंदर इच्छा नहीं होगी, मेरा मानना है कि वहाँ पे इश्यूज आने के चांस होते हैं। पर जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड है या प्रॉपरली काउंसल्ड है, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो चश्मा पहन रहा है उसको लेज़र करा के या बाकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं वो लोग। सर मैंने देखा है कि लाइक इफ़ वी लुक एट द यंगर जनरेशन ना और जेंजी ऑडियंस, सर वो ना अपने फ्रेंड सर्कल में बातें सुन के दे थिंक कि लेज़र भी उनके लिए ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, मे बी उनके लिए ना हो। तो ये सिचुएशन सत्य में आती है कि लोग अपने आप को पहले सेल्फ एजुकेट बहुत कर लेते हैं, एंड दे आर, आई कॉल इट ओवर इन्फॉर्मेशन सिंड्रोम। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, वो इन्फॉर्मेशन को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसको एसिमुलेट नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी गलत हो जाती है। ओके। तो पहले यहीं पे आके बात होती है, येस इट इज़ गुड टू गो टू सोशल मीडिया और गूगल और इंक्वायर अबाउट इट, बट मेरा मानना है कि इतनी इन्फॉर्मेशन उस पर होती है, और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको गैदर करने के बाद उस पर डिसीजन ना लें। एक प्रोफेशनल को चेक कराइए, अपनी ऑफ्थेल्मिक प्रोफेशन को, और उसके बाद चेकअप करके कराइए। हो सकता है कि आप कोई पेशेंट लेज़र कराने की इच्छा से गया है, लेकिन डॉक्टर सलाह देता है कि आपको तो लेज़र नहीं हो सकता। क्यों? या तो कॉर्निया पतला है, या ड्राइनेस है, या पावर बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो उनको फिर दूसरी सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने लेज़र के बारे में पढ़ रखा है, और जब दूसरी ऑप्शन होती है जैसे फेकिक आयल है, तो फिर वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर दोबारा रिसर्च में लग जाते हैं। तो यहाँ पे समझना अच्छा है कि आप जिस प्रोफेशनल पे, जिस डॉक्टर पे आपने ट्रस्ट किया है, वो जो आपको सलाह दे पाएगा, क्योंकि वो जब आपको बात कर रहा है पेशेंट से, तो पेशेंट की पर्सनैलिटी, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी, उसकी लाइफ स्टाइल, सब कुछ असेस करता है। और ये बातें हैं जो कि आपको सोशल मीडिया या गूगल नहीं बता सकते। सो सर अब जैसे यू सेड कि फॉर लेसिक प्रोसीजर्स देयर शुड बी अ कॉर्नियल थिकनेस ऑफ 500 to 550 माइक्रॉन्स। सर एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। सर व्हाट आर अदर क्राइटेरियाज जिससे हम पता कर सकते हैं कि दिस पेशेंट इज सुटेबल फॉर द लेसिक प्रोसीजर? या सो देखो, थिकनेस पे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि पीआर के प्रोसीजर के लिए 480 माइक्रोन यानी 480 माइक्रोन से ऊपर किया जा सकता है। ओके। लेजिक के लिए हम चाहते हैं 500 माइक्रोन से ऊपर हो। ओके। अपर लिमिट 550 नहीं है, किसी किसी की 600 610 भी हो सकती है, बट इंडियन सिनेरियो में ज़्यादातर 500 से 550 के बीच में मिलती है। इसके अलावा होती है कॉर्निया की शेप। कभी कभी थिकनेस बहुत अच्छी है, 500 से थिकनेस है, लेकिन शेप उसकी इरेगुलर है, और उसको जब हम पेंटाकेम या एनालिसिस करते हैं टोपोग्राफी से, पता लगता है उसके कॉर्निया में एक शेप वीक भी हो रही है और केराटोकोनस बैठा हुआ है, फॉर्मिंग फ्रस्ट से छुपा हुआ केराटोकोनस है। तो एक प्रॉपर टोपोग्राफी होना अच्छी, मतलब एक शीमफ्लग बेस, बेसिकली एक पेंटाकेम टेस्ट कॉमनली कह लीजिए, वो 2-4 मिनट का स्कैन होता है, उसकी जो एनालिसिस है वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। ओके। उसके अलावा बात आती है कि कोमॉर्बिडिटी, जैसे मैंने कहा ड्राइनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी को ग्लोकोमा है या कैटरेक्ट है, सपोज किसी की आंख में कैटरेक्ट है तो उसको लेजर की जरूरत ही नहीं है, कैटरेक्ट सर्जरी करके उसको चश्मे हटाया जा सकता है। राइट। इसके अलावा मान लो किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ से आंखें में रेटिनोपैथी हो रही है, तो ऐसे में क्या, पहले उनको डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल होनी चाहिए, और फिर भी चश्मा हटाने की उनकी यदि इच्छा है तो उनको समझना है कि उनके केस में लेजिक के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे जो बिना डायबिटीज़ वाले पेशेंट के होते हैं। लेकिन अगर शुगर अच्छे से कंट्रोल में है, रेटिना नॉर्मल है, तो डायबिटिक पेशेंट्स का भी लेज़र किया जा सकता है। So sir, now let's move on to the third section of the podcast, which is related to a technique which you have invented. Sir, it is a novel dual tunnel technique, and you have used it in a posterior polar cataract. So sir, as per my information, most of the doctors are using quadrant technique in the posterior polar cataracts. So sir, now how this technique differs from the other one? So, Satyam, thank you for bringing up this, my favorite topic, which is my invention also, a dual tunnel ambidextrous phaco. So basically, when we talk about cataract, in cataract surgery, there is a part where we need to rotate the cataract within its bag. You know, there is a layer within the, capsule. Within capsule, we have to rotate the cataract. Right. So most surgeons are either right-handed or left-handed. So everybody is in a habit to make one port, go inside it, and make a piece of cataract, emulsify and aspirate it, and then keep rotating the cataract and
remove it. So piece by they cut that cataract into 4 parts. See, actually it can be cut into 8 parts also. Okay. They keep actually 4 parts is just we make initially. That quadrant technique is very old technique. Now there is a direct chop, stop and chop. But when it comes to posterior polar cataract particularly, it is not advisable to rotate the nucleus, and it is not advisable to do hydrodissection or delineation. So here becomes a challenge because when you go through single port, it is easy to remove the opposite end of the half of the cataract. Right. But there is a other half of the cataract which is lying under the instrument. Instrument. So when instrument is like this, it can go and eat it. But how to remove this? We have to rotate and bring it down in front of the tip. Right. But you cannot rotate it because it is posterior polar cataract. So here I have invented it, thought of a new way that let us make another port, not diagonally but maybe 90 to 180 degree opposite to the primary port. Primary port. So what happened? Through one port you have removed this half of the cataract, Okay. and through other half you can remove this part of the cataract. Okay. But this technique, I mean, probably nobody thought of. I was also able to thought of this technique, when I turned into ambidextrous surgeon. Okay. So you can use both the hands during the surgery. Yeah. So actually everybody use both hands, but one particular instrument only in the dominant hand and supportive instrument in the non-dominant hand. Okay. Now in this technique, because I turned into ambidextrous surgeon, so I started using dominant, main instrument which I was using in right hand earlier, which is my dominant hand. I started using in left hand also. Okay. So what happened? This aspirating the phaco probe, if it is going through this side, from my right hand, I can use my left hand to bring probe into the eye through the left side. So that now this gives an opportunity to remove left half from the right hand and right half from the left hand. Left hand. So this is a serendipity. It happens by chance because I started using my left hand. It happened. There is also a story to it. There are so many aspects of this how I turned into ambidextrous surgeon. It started during COVID times. I motivated myself. It's not easy, but I did it. So because I have done it, I believe I can train other people also. Yeah. So sir, iska learning, there must be a learning curve for that, na? Yeah. So it took me almost 1.5 years Okay. to reach a level where I can independently do with this confidence with the left hand also. So it all happened during COVID times because there were very less number of cases, and so there is a story to it, I think. But when I turned into ambidextrous, I started doing with both hands. Right eye, I was using my right hand, for main instrument. Left eye hand, I started using left hand for the main instrument. So in posterior polar, this idea came to my mind: why not to use half surgery with the right, with the right hand and half surgery with the left hand. And there's no need to rotate, and it came out as such a beautiful technique that I'm presenting in national and international platforms, and everybody is really appreciating this technique because it really brings down the chances of complication to very low level. In posterior polar cataract, nobody can promise that you can fit multifocal lenses or trifocal lenses. So I have started, doing, I've done so many posterior polar cataracts where it was a true posterior polar cataract, and I have been able to, implant trifocal lens. And I would say there is an advantage of technology also, which was one of the earlier question, that, I'm using femto laser to make a good capsulotomy. I'm using my skills also. And because I'm using a high-end phaco machine, so that machine has helped me in becoming ambidextrous. So again, coming back to your previous question, that how technology helps us. Technology has really helped me in making my left hand as good as right hand. So without good technology in my hand, I wouldn't have even thought of it. So sir, in this particular video, sir, ये वाली जो मैं video show करूँगा ना sir. So sir, in this particular video, sir, what lens you have implanted? So see, in this video, I have implanted trifocal lens, and which is not possible in the posterior polar cataract. It is possible if there is no rent in the posterior capsule. But if there is a rent in the posterior capsule, it becomes very challenging to put trifocal lens. So there are two aspects in this surgery. One thing is that it was a true posterior polar cataract, so there was a PC rent, and I also used femto laser cataract surgery, a femto machine to make the capsulotomy, which makes central precise 5mm axis. So
And then I used my both hands and this dual tunnel technique to remove cataract without rotating it. So what came into picture is that, in fact, I have designed an instrument also. I've named it Rakesh Gupta Chopper Shield, Okay. which has also helped me. So in this surgery, three things has helped me. One thing is femto laser, other thing is chopper, which I have designed. Second, this dual tunnel ambidextrous phaco technique. Ambidextrous. So these three things have actually enabled me to put trifocal lens in both eyes. And this patient was actually, he wanted trifocal lens and nobody was able to commit, because though even I couldn't commit, nobody can commit 100%. Yeah. But with this technique, I told him that I'm almost 90% sure that I will be able to do in both eyes. And now patient is seeing, without glasses both for distance and near. And this posterior polar cataract, definitely this technique has really helped me, and that patient also. There is a complication with the trifocal IOL that it has halos or glares. Yeah. So sir, why there are halos or glares in the trifocal IOL? Yeah, again a good question. सत्यम देखो, कोई भी ट्राइफोकल लेंस जो होता है, कोई भी मल्टीफोकल लेंस, उसमें क्या है कि ना, इट इज अ डिफ्रैक्टिव लेंस. तो वो क्या करता है कि जो लाइट आ रही है उसको नियर और डिस्टेंस के लिए डिवाइड करना होता है. ओके. क्योंकि जो नेचुरल लेंस है वो तो एकोमोडेट होता है, पतला मोटा होके कंट्रोल कर लेता है, जो नेचुरल जो गॉड मेड लेंस है. बट ये जो एक्रिलिक लेंसेज होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते. तो इसमें ना हम जो साइंटिस्ट ने, जो इंजीनियर्स ने टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है वो डिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी. तो उसमें रिंग्स होते हैं, डिफ्रैक्टिव रिंग्स. तो जो लाइट है वो एक तरह से डिफ्रैक्ट करके 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, फॉर, इंटरमीडिएट एंड नियर. वो जो डिफ्रैक्शन रिंग्स होती है, अगर उस पर कोई भी लाइट जाती है तो खासकर लो लाइट कंडीशन में जब प्यूपिल डायलेट होता है, आप किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को देखते हैं वो थोड़ी सर्कल्स बन जाते हैं उसके आसपास, जिसे हेलोस बोलते हैं, और थोड़ा ग्लेयर होता है. जो शुरू की टेक्नोलॉजी आई थी आज से 25-30 साल पहले शुरू होते, उसमें वो ग्लेयर हेलोस ज़्यादा होते थे. लेकिन ऑब्वियसली इवोल्यूशन होता है टेक्नोलॉजी को, और अब ट्राइफोकल लेंस की टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, तो ग्लेयर हेलोस बहुत मिनिमम हो गए हैं. तो यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पेशेंट्स को भी कि जो लोग ट्राइफोकल लेंस डलवाना चाहते हैं, दोस्तों, लोग जनरली क्या गूगल पे जाके सत्यम सोचते हैं कि इसमें ग्लेयर हिल होगा, नाइट ड्राइविंग बंद हो जाएगी. जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट पे ना इन्फॉर्मेशन बहुत ग्रॉस मिलती है. वो जितने स्टडीज पुराने लेंसेज से पब्लिश हुई थी उस पे बेस्ड है वो. आज मैं आपसे बोलूँ कि गाड़ी है, कि भाई कोई भी गाड़ी होती है उसमें बार बार कार्बोरेटर में पानी डालना पड़ता है. अगर गूगल पे लिखा होता फिएट एम्बेसडर के ज़माने में जब पुरानी गाड़ियाँ थी, आज की गाड़ी में ऐसा नहीं होता है. तो मेरा मानना है कि ट्राइफोकल लेंस बहुत अच्छी ऑप्शन है. ग्लेयर हेलोस होते हैं लेकिन वो डिस्टर्बिंग नहीं होते. और अपने माइंड को यदि कोई 2-3 महीने देता है अडेप्ट करने के लिए, न्यूरो अडेप्टेशन से वो धीरे धीरे आप ड्राइविंग भी करने लग जाते हैं. और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आज की तारीख में मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी कितने घंटे आप मोबाइल यूज़ करते हैं और कितने घंटे आप नाइट ड्राइविंग करते हैं. राइट. सर वो नियर देखने का, like even we are using mobile phone for 4 to 5 hours a day. Exactly. But how much night driving are you doing? Yeah. Maybe half an hour, 1 hour. Yeah, right. And अगर आप मोबाइल की बात करें, जो खासकर जो लोग कैटरेक्ट कराने वाली एज में होते हैं, सी यू आर वर्किंग, को आप 4 घंटे बोल रहे हैं. इमेजिन समबडी हु इज रिटायर्ड, वो तो 8-8 घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं. राइट. तो अब लोग ये नहीं समझते कि ट्राइफोकल लेंस डालने से आप 8 घंटे मोबाइल बिना चश्मे के करने लायक हो जाते हैं. और नाइट ड्राइविंग उस एज में कितनी करनी होती है, और जो करनी होती है वो करने लायक होते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा माइंड को न्यूरो अडेप्ट करने की अलाउ करते हैं. लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत नाइट ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, या उनकी बहुत प्रिसाइज विजन रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए अब ईड ऑफ टेक्नोलॉजी के लेंस आ गए हैं, जो कि डिस्टेंस के साथ इंटरमीडिएट विजन अच्छा देते हैं. मोबाइल के लिए आपको 1 नंबर का चश्मा लगाना पड़ सकता है. बट मेरा मानना है कि ट्राइफोकल के साथ जो ग्लेयर हेलोज है, उसको जो जितना उसको मैग्नीफाई करके देखा जाता है एज ए कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट, उतना इफेक्ट नहीं है. क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्जन्स की भी आंखों में डाले हैं, नाइट ड्राइविंग करने वालों की आंखों में भी डाले हैं. व्हाट मैटर इज दिस कि इज पेशेंट रेडी टू गिव 2-3 months टू एडजस्ट और नॉट. बट यहाँ पे भी आके बोलता हूँ, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत परफेक्शनिस्ट होती है, टाइप ए पर्सनैलिटी बोलते हैं हम. उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि नहीं, उनको ट्राइफोकल अवॉइड करना चाहिए. उनके लिए मोनोफोकल लेंस बेस्ट होता है. या किसी किसी की विजन रिक्वायरमेंट बहुत प्रिसाइज है, क्योंकि ग्लेयर और हिलो के साथ साथ ना कंट्रास्ट विजन भी कम करता है ट्राइफोकल लेंस. तो जो लोग रूटीन लाइफ में, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन मे बी कोई, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं कि अंधेरे में उनको फोटोग्राफी करनी है, नाइट फोटोग्राफी करनी है. प्रोबेबली कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे कि ट्राइफोकल डालना उनको अवॉइड करना चाहिए. बट रूटीन में जो एक आम जिंदगी में बहुत अच्छा वो लोगों के लिए चश्मा हटा के और बिना चश्मे के मोबाइल करने लायक जो बना देते हैं, किचन में लेडीज़ के लिए बिना चश्मे के काम कर पाना, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है.
let's conclude this podcast. Sir, अब the main pressing concern is कि sir, innovations happen in Western countries. Sir, my question to you is कि how can doctors and manufacturers collaborate to bring out innovations in India as well? I think, Satam, this is a very pressing question, and India need this collaboration. I feel कि healthcare has gone through a very rough patch in last 20 years worldwide, especially, but especially in India also. Actually, there has been a very regular, I would say constant pressure to reduce the healthcare cost. And this pressure to reduce the healthcare cost has taken away the focus from R&D. Right. See, R&D has an important cost. So if in India we do need to do R&D in medical science, I think everybody has to become supportive. I would say our government, our bureaucrats, institutes, and companies also have to realize that R&D will happen. There is so much of talent in India. If you see even outside, whatever R&D is going on, there is somewhere Indian brains behind all those R&Ds. Right. But I can see that Indian pharma companies are now growing. Indian companies are growing. There are good Indian companies which have brought up good technology also. But when it comes to R&D, that the time which is to be given to R&D, to make an innovation or to come out to invent something, there is a time involved and there is a risk involved. That time or energy or money which is spent may not bring out results. So the day companies are ready to spend taking that risk and they are able to to reimburse for whatever time a scientist or doctor or researcher is giving, I think this is where this issue is, I would say, stuck somewhere. If researchers get their due in terms of finances, and companies, they understand that not every research is going to come out with a good product, Positive outcome, right? then I think miracles can happen. India have so much of brain. You can see, अगर हम बोलते इतने जुगाड़ लोग करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो, तो Indian minds are very sharp. They can think, they can innovate, and you can see how our space ISRO has grown. Yeah, right. The most cost effective, when they reached Mars, it was very cost effective. So Indian research is going to be very cost effective, but companies have to bring that confidence in people, in medical students, that think of going into research. Right now, anybody who is entering MBBS, nobody is thinking they want to go into research. So if there is a scope, good scope as a career in research, which I still feel India में नहीं है, अगर वो होगा तो it will be very sir, good तभी initiative. हमारी सर academic involvement भी सर western countries से कम है. Like according to statistics, they are having 15 to 20% academic involvement as compared to doctors. Sir, in India it is around 5 to 10%. Yeah, because that too, some private institutes who have taken a pain to do research, and those institutes are running after I would say philanthropists to donate something. And I think our government budget is very limited for healthcare for obvious reasons. So I think, but if pharma companies, those equipment companies, Indian companies, if they can collaborate with people, with private practitioners also, there is so much of scope now to do research even in private hospitals. And if that can happen, so definitely, there are going to be positive results. Like few months back, there came a drop which can cure the presbyopia. Sir, what is the story behind it? So it's a very interesting story. I'll be very open about it. एक पाइलोकार्पेट एक सॉल्ट है जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ग्लोकोमा के लिए अवेलेबल है. उसका एक साइड इफेक्ट होता था कि क्योंकि वो हमारे प्रेशर कम करने के लिए पीपल को छोटा करता है. जब पीपल को छोटा करता है तो उसके एंगल्स को थोड़ा खींच देता है वो. ठीक है, इसी से ग्लोकोमा कंट्रोल होता है. लेकिन वो पीपल छोटा होने से क्या होता है कि जब पीपल छोटा हो जाएगा तो चीज़ें नज़दीक की बिना चश्मे के दिखनी शुरू हो जाती है. एंड आई एम सरप्राइज्ड हाउ that company got the approval because it is a side effect of pilocarpine. Meiosis और जो
जो उसके लिए वो साइड इफेक्ट है, और उस साइड इफेक्ट को अगर आप उसको यूज़ दिखा देंगे, तो अगर वो लोग ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं, थैंकफुली गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ स्टेप एट राइट टाइम, उसके लिए डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि ये ड्रॉप अगर डालना शुरू कर देंगे, पहला साइड इफेक्ट उसको हेडेक है, सर दर्द होगा। दूसरा क्या है कि रात को कम दिखेगा। सपोज आपने ड्रॉप डाल के बाहर चले गए तो आपको बहुत कम दिखेगा, क्योंकि रात को पिपल डायलेट होना चाहिए, वो होगा ही नहीं। तीसरा क्या है, अगर लगातार ड्रॉप डालते हो पुतली छोटी रह जाएगी, उससे क्या होगा कि आपका रेटिना चेक नहीं हो सकता, कैटरेक्ट सर्जरी में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये एक दवाई, इस दवाई को लॉन्च करना एक आई वुड से कि एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि ये हो कैसे गया। और ये दवाई यूएस में भी लॉन्च हुई थी, तो बट इट एक्चुअली शो हाउ समवेयर कि किस तरह से कंपनीज इन्फ्लुएंस करती हैं और उसको मीडिया में लाती हैं, और उस कंपनी ने एक बहुत गलती की, उसको डायरेक्टली उसको लॉन्च किया पब्लिक के बीच में, क्योंकि उनका बहुत एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम दिखा। उनको लगा कि ये लोग डायरेक्ट लेना शुरू कर देंगे। तो थैंकफुली, मुझे अभी करंट स्टेटस नहीं पता, बट टू माई लास्ट नॉलेज दैट द प्रोडक्शन ऑफ दैट ड्रॉप वाज स्टॉप्ड, एंड बट वो ड्रॉप सर इट मेड वेव्स कि एकदम ही कोई ड्रॉप आई है, सी इट इज क्यूरिंग प्रेसबायोपिया। तो देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली क्या है कि ना, कुछ बीमारियाँ ऐसे दोस्तों हमारे बीमारी के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे सर पे बाल, गंजापन आना, हाइट, डार्क कॉम्प्लेक्शन, मोटापा, चश्मे का नंबर, ये ऐसी चीज़ें हैं बड़ी, ये या फिर ये कह लीजिए कि भाई सुंदर दिखना, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे चश्मा हटाने के लिए आप लेज़र करा सकते हैं, आप हेयर के लिए ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ठीक है, वेट लॉस के लिए आप लाइपोसक्शन करा सकते हैं। अगर कोई भी क्लेम करता है कि दवाई से हो जाएगा, तो एक बज़ क्रिएट हो जाती है, और हम ये सोचते नहीं, और हमारा जो माइंड है ना, वो या तो सुनी से बातों पर विश्वास करता है, और या फिर अगर कोई मीडिया बोल देता है सोशल मीडिया पे, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हम ना उसको रीजनिंग पे नहीं जाते कि ये कैसे हो सकता है। तो इंडियन मार्केट तो उसके लिए बहुत एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। एक किसी भी झूठ को, अफवाह को फैला दो और होता जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी की दवाई पे बैन लगाया था एडवर्टाइजमेंट करने पे। तो आई थिंक कुछ रूल्स हैं जो हमारे बहुत पुराने रूल्स अच्छे बने हुए हैं, थैंक्स टू दोज रूल्स की उसकी वजह से उस दवाई की एडवर्टाइजमेंट बंद हुई। एक ही चीज़ पे सारे, एक दवाई से हर चीज़ का उसका किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक्शन हुआ है। इसी प्रकार इस दवाई की बात है, तो कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं कि उस साइड इफ़ेक्ट को फ़ायदा उसको गिनाना शुरू कर दिया जाए। ये बहुत गलत हुआ था, और आई होप कि ये गवर्नमेंट इसको हमेशा के लिए कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर उन साइड इफ़ेक्ट्स को अगर आप बेनिफिट लेना चाहेंगे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे आँख में बताया कि मैंने कि मतलब उससे सर दर्द होना, रात को कम दिखना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में दिक्कत आना, रेटिना चेक नहीं हो पाना, किसी का डायबिटीज है तो रेटिना चेक नहीं हो सकता, प्यूपिल गेट स्मॉलर, तो हाँ, और रेटिना डिटैचमेंट हो पाना। पाइलोकार्पिन का एक साइड इफेक्ट रेटिना डिटैचमेंट होता है। ओके, या आप कोई मायोप अगर को पहन लेगा तो उसको डालेगा तो उसकी आंखों में डिटैचमेंट हो सकता है। ओके, देयर इज सो मच ऑफ साइड इफेक्ट। जैसे ड्रग लेने से लोग लेते हैं और कितने साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो दवाई बिल्कुल एक, मैं कहूँगा एक स्कैम है, जो कि नहीं होना चाहिए था, पर समय पे उसको कंट्रोल कर लिया गया, थैंकफुली। थैंक यू सो मच सर to be on the podcast. It was an honor to have a chat with you. Thank you, Satyam. Thanks for inviting me and giving me this opportunity to talk to you, and your questions have been very, I would say, sensible question.